Hello everyone, myself Kushali Katheria. In this video, we discuss the image enhancement. In previous video, we discussed the different kind of the key stages in digital image processing. Like we have a discussed image equalization, that means capture the 3D image into 2D image and then convert into digital image. Okay, so this one is the digitization of image. The second one is the image enhancement. Okay, after that we discuss image enhancement. That means आपको क्या करना है, remove the noise from the image and विजुअलाइजेशन जो उसका है उसको आपको बेटर बनाना है. दैट मीन्स दिस वन इज द इमेज एनहांसमेंट. आफ्टर दैट इमेज रिस्टोरेशन, मॉर्फोलॉजिकल लॉजिक, segmentation, object recognition, representation, description, home compression and color image processing. But in this video we discuss the image enhancement. Okay, what is the image enhancement and what is the work of image enhancement, we will discuss in this video. So first of all, image enhancement का use क्या है? In previous video, that means in our key stages of image digital image processing, we discussed the image enhancement. Use of image enhancement is to improve the quality of image as well as improve the visualization of image and remove the noise from the image. If our image is a lighter, then we convert our image into dark image. After that, if our image is a very dark image, that means only if we haven't seen any data in our image or in any object and in our image, then we convert into lighter image. Okay, so this one is the brightness changing, that means enhancement. Okay, so what is the motive is the image enhancement motive is the generate a better visualization of image as well as remove the noise of image and uh, capture the capture the interesting part of image. That means आपको जो interesting, suppose कि आपकी full body चेकअप हुआ है, सॉरी चेकअप हुआ है आपका फुल बॉडी का, उसमें उसमें से आपको कोई इंटरेस्टिंग पार्ट अगर आपका टमी का हो या तो फिर हेड का हो या तो फिर ट्यूमर का हो, वो आपको आइडेंटिफाई करना है. उसमें आपको चेक करना है कि भाई कौन सी क्या बीमारी है, वो आपको चेक करना है. तो आप क्या करोगे, उस पार्ट को इंटरेस्ट करोगे, वही आपको यूज करना है, वही यूजफुल है, तो वही आप क्या करोगे, उस पर इमेज प्रोसेसिंग करोगे. Okay, so this one is the use of the image enhancement. So let's discuss what is the image enhancement in detail. First of all, in previous video we discussed the three kind of the image format. First one is the one sample per point. That means we have a discussed black and white image as well as grayscale image. Black and white image, that means if in our image they only contain black and white color, only two shades of color, that is one is a black. If there is a no black, then that one is another one is a white. Okay, so प्रीवियसली हम जो देखते थे 1950 और 1960 में, 1940 के पहले जो पिक्चर्स हुआ करती थी, मूवीज हुआ करती थी, वो क्या थी, ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करती थी, कलर इमेज नहीं थी. तो कैमरा के पास वो क्वालिटी नहीं थी, तो वो क्या करते थे, सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट पिक्सल इमेज जनरेट करते थे. ओके, आफ्टर दैट अनदर इज वन सैंपल पर पॉइंट. दैट मीन्स एक पिक्सल पर एक वैल्यू हो, ऐसी एक वैल्यू है ग्रे स्केल इमेज. ग्रे स्केल इमेज, दैट मीन्स शेड्स ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट इन कलर. ओके, वो उसमें क्या होगा, शेड्स हो गए, कोई लाइट ब्राउन, सॉरी लाइट ग्रे, डार्क ग्रे, ब्लैक, एकदम से डार्क, एकदम से व्हाइट, व्हाइट ग्रे, ऐसा कुछ मिक्सचर ऑफ व्हाइट एंड ब्लैक. ओके, सो दिस कॉल्ड अ ग्रे स्केल इमेज. वो क्या होगा, वन, सपोज कि ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है तो उसका पिक्सल वैल्यू क्या होगी, 1 या तो 0 या तो फिर 1 0 या तो फिर 255. और ग्रे स्केल होगा तो क्या होगा, 0 से 255 के बीच में कोई भी एक नंबर, बट वो क्या होगा, एक ही नंबर होगा एक ही पिक्सल पर. So this called a 1 pixel per image, black and white grayscale image. So here we have discussed, I have discussed that so far when we have spoke about the image gray level value, we have said there are the range in 0 to 255. We have a total 256 pixel. Okay, so if our image is 0, that means pixel value is 0, that is a black, and if our value is 255, that is a white. If our value between 0 to 255, that means that is a grayscale, shades of black and white color. Okay, there is no reason why we have used for this range. Okay, अगर हमें
ग्रे स्केल इमेज चाहिए तो 0 से 255 के बीच में से कोई एक पिक्सल चूज करना होगा, वो क्या होगा, ग्रे कलर का होगा। ओके, जो मिक्सचर होगा ब्लैक एंड व्हाइट दोनों इमेज का, अगर हम 0 यूज करेंगे दैट मीन्स ब्लैक एंड 255 यूज करेंगे दैट मीन्स व्हाइट। फॉर मेनी ऑफ इमेज प्रोसेसिंग ऑपरेशन ग्रे स्केल आर assume that to be given in range 0 to 1। ओके, मैंने बोला था आपको ब्लैक एंड व्हाइट अगर होगी तो आप 0 और 1 या तो फिर 0 to 255 ले सकते हो, बट ग्रे स्केल को मेजर करने के लिए हम 0 से 1 तक का भी यूज कर सकते हैं। सो दिस वन इज द ग्रे स्केल लेवल। नाउ डिस्कस द व्हाट इज द इमेज एनहांसमेंट। इमेज एनहांसमेंट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इमेज मोर यूजफुल। जो हमारी एक्चुअल इमेज है वो क्या है, वो शायद ब्लर है, नॉइसी है, या तो फिर ब्लैक एंड व्हाइट शेडो में है। ओके, कोई कुछ पार्ट है वो डार्क है, जो हमें विजिबल होना चाहिए बट वो डार्क है। सो उस टाइप की इमेज को अगर हमें यूजफुल बनाना है तो इमेज एनहांसमेंट की मदद करनी होगी, उसकी मदद से करेंगे। द रीजन ऑफ फॉर डूइंग द इमेज एनहांसमेंट ऑन द इमेज, ओके, दैट इज फर्स्ट वन इज द हाईलाइटिंग इंटरेस्टिंग डिटेल्स इन अ इमेज। अगर आपको इमेज में कोई भी डिटेल्स हाईलाइट करनी है, कोई भी पार्ट हाईलाइट करना है, कोई भी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंट पार्ट आपको अगर हाईलाइट करना है, so this one is the use for we can generate, or we can generate using image enhancement. Second reason is remove noise from the image. If our image is contain a noise, if our image is noisy, then we will remove our noise using image enhancement. And third one is the making image more visually appealing. ओके, अगर हमारी इमेज विजुअली परफेक्ट नहीं है देन we will used image enhancement for the better visualization of our image. Okay, so let's discuss for example. This one is the कोई आपकी बॉडी का एक पार्ट है। ओके, तो इस पार्ट में आपको यहाँ पर जो एक्चुअल इमेज हमने कैप्चर की है, जो हमारा मशीन है उसे हमने जो कैप्चर की है हमारी एक्चुअल इमेज, वो कुछ इस तरह है। यहाँ पर उसकी एज दिखाई नहीं दे रही है, उसकी जो मतलब बॉर्डर होगी, जो एजिस हम बोल सकते हैं, तो वो हमें दिखाई नहीं दे रही। यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रही है बट यहाँ दिखाई नहीं दे रही। तो बेटर विजुअलाइजेशन के लिए हम क्या करेंगे, ये पार्ट जो डार्क है, ये डार्क वाला पार्ट है, यहाँ पर एक्चुअली इंफॉर्मेशन है बट उसके पिक्सल की वैल्यू क्या है, नियर टू ब्लैक, ब्लैक के नियर है। ओके, मतलब 0 से पास, 0 के पास है, तो ये क्या है, कुछ यहाँ पर रिमूव, मतलब यहाँ पर एकदम से ब्लैक है, यहाँ पर कुछ कुछ ब्लैक है, यहाँ पर शेड्स ऑफ ब्लैक है, यहाँ पर है ही नहीं। तो इस टाइप की इमेज में हम क्या करेंगे, इमेज एनहांसमेंट अप्लाई करेंगे। दैट मीन्स इसकी जो पिक्सल की वैल्यू होगी, उसकी पिक्सल की वैल्यू को हम क्या कर देंगे, हर एक पिक्सल की वैल्यू को हम बढ़ा देंगे। दैट मीन्स जहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है उसके पिक्सल की वैल्यू में हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे। तो क्या होगा, ये वाली कुछ इमेज ऐसे जनरेट होकर आएगी। दैट मीन्स दिस वन इज द बिफोर एनहांसमेंट एंड दिस वन इज द आफ्टर एनहांसमेंट। ओके, ऑल्सो दिस वन इज द फुल बॉडी एक्सरे। यहाँ पर फुल बॉडी एक्सरे 1-2 बार या तो 3 बार करवाते हैं। ओके, डॉक्टर क्या करेगा भाई, हमारे मशीन, हमारे बॉडी पर वो मशीन एक्सरे है वो करेगा, अप्लाई करेगा, तो वो क्या होगा, फुल बॉडी का चेकअप करेगा। अब कैप्चर हुई है इस तरह की इमेज, बट हमें यहाँ पर कुछ, यहाँ पर देखो ये वाला जो बॉन है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, ये भी नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी है वो भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो बेटर विजुअलाइजेशन के लिए हम क्या करेंगे, इमेज एनहांसमेंट यूज करेंगे। जबकि यहाँ पर जो लाइट है, मतलब लाइट शेड्स ऑफ वाइट है, उसको हम क्या करेंगे, डार्क करेंगे और डार्कर करेंगे। दैट मीन्स दिस वन इज द बिफोर एनहांसमेंट एंड दिस वन इज द आफ्टर एनहांसमेंट। So image processing is basically used for the medical, mostly used, okay, in medical phase as well as in our engineer life. This one is our circuit board. Okay, इसी student को पता होगा। So this one is our circuit board, but this one is a very noisy, यहाँ पर noise कहीं ज़्यादा, बहुत ही noise है। और this one is a noise free image using image enhancement. After that another one is the कोई एक हीरोइन है, उसका एक पिक्चर है। तो अगर आप बोले कि सपोज कि आप अभी बोले कि भाई जो हम यूज करते हैं फिल्टर्स, स्नैपचैट के फिल्टर्स है, कोई आप इंस्टाग्राम के फिल्टर्स बोल दो, व्हाट्सएप के फिल्टर्स बोल दो, तो वहां पर क्या होता है,
वो आपको एक से एक फिल्टर देंगे कि सपोज कि आपकी फेस पर जो कोई भी सपोज कि पिंपल्स है या तो फिर कोई डस्ट है या तो फिर कोई कोई भी अगर वो क्लीन नहीं है तो वो क्या करेगा, उसको क्लीन कर देगा। दैट मीन्स दिस वन इज द फर्स्ट जो हमारा बिफोर एनहांसमेंट, उसके ऊपर इमेज प्रोसेस के ऊपर जब हमने नहीं किया था वो वाला इमेज है ये वाला। उसके बाद उसको क्या किया हमने, लाइट किया। दैट मीन्स उसके ऊपर एक फिल्टर मारा, अगेन हमने एक फिल्टर मारा, तो यहाँ पर जो उसको दिखाई दे रही है उसको हम बोलते हैं कुछ एजिस हमें दिखाई दे रही है, वो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है और यहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही है। सो दिस वन इज द ओरिजिनल इमेज एंड दिस वन इज द एनहांस्ड इमेज। ओके, सो दिस वन इज द इमेज एनहांसमेंट इन अवर डे टू डे लाइफ। जो हम स्नैपचैट यूज करते हैं वो बेसिकली क्या है, इमेज प्रोसेसिंग ही है। ओके, सो वो हम बोल सकते हैं कि जो उसके स्नैपचैट के फिल्टर्स आते हैं वो इमेज एनहांसमेंट के काम करता है। ओके, इमेज एनहांसमेंट का काम करता है। सेम टू सेम व्हाट्सएप पर जो होता है, इंस्टाग्राम पर जो होता है। ओके, सो दिस ऑल आर यूज फॉर द digital image processing and they are used image enhancement. After that we discuss the two domain for the spatial domain and frequency domain. Okay, there are the two broad category for the image enhancement technique. If we want to continue our topic in if we want to remove our noise or remove the unwanted pixel value from our image, then we used image enhancement, that two technique. First one is the spatial domain techniques, this one is the first technique, and second one is the frequency domain techniques. Okay, we will discuss these both techniques for the image enhancement. First of all, we discuss the spatial domain technique. They are the directly manipulated for the image pixel. That means we discuss the image histogram equalization, histogram stretching. Okay, this kind of that stuff we discuss in spatial domain techniques. And second one is the frequency domain technique. In frequency domain technique we discuss the Fourier transformation. There are the derivation. Okay, जो time के साथ derivation होता है वो हम करेंगे use, और wavelength उसको हम wavelength transformation भी बोल सकते हैं for the image. So in next video we discuss the image enhancement for the image histogram. Okay, histogram को अगर हम बोल सकते हैं तो उसकी ग्रे लेवल है। इमेज एनहांसमेंट क्या है कि भाई इमेज एनहांसमेंट है जो आपकी ग्रे लेवल वैल्यू है, जो आपकी पिक्सल वैल्यू है, अगर लाइट है, कम है, नियर टू जीरो है, तो आपको क्या करना है, उसको एडजस्ट करना है उस हिसाब से कि भाई सारी की सारी इमेज की वैल्यू एक एक जैसी हो। तो ये वाली सपोज कि आपकी ग्रे वैल्यू है तो आपको उस प्रकार ऐसे, यहाँ पर देखो ब्लैंक है तो आपको ऐसे चेक करना है, यहाँ पर ब्लैंक है, जीरो है और यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट पर है, तो आपको ऐसे इक्वली उसको डिवाइड करना है हिस्टोग्राम को, इमेज के पिक्सल को, कि भाई उसकी जो इमेज की क्वालिटी है वो एज यूजुअल रहे, उसमें बहुत ज्यादा चेंज ना है, वो ब्लर ना हो जाए, वो एकदम से डार्क ना हो जाए, शार्प ना हो जाए, और उसका क्या होगा, उसकी वैल्यू भी, उसका जो डेटा है इमेज का वो भी एज यूजुअल रहे, बट उसके पिक्सल की जो रिमूव मतलब जो हाइट डिटेल है, जो हमारे सपोज के यहाँ पर जो हाइट डिटेल है वो हमें क्या करनी है, विजुअलाइज करनी है। तो ऐसे हमें हिस्टोग्राम मैनेज करना है कि ये वाली इमेज को हम हिस्टोग्राम की मदद से क्या करेंगे, उसके पिक्सल की वैल्यू को सेट करेंगे, और उसके पिक्सल की वैल्यू को सेट करते वक्त वो जो इमेज एनहांसमेंट है वो उस पर यूज करेंगे। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस द इमेज enhancement as a image histogram. This one is the technique of spatial domain technique. This is called a image histogram. Okay, so we will see in next video. Thank you.